Good evening, everyone. A very warm welcome to all our wonderful nursing students joining us from different parts of the country. I am Nandini Paul, and it's my absolute pleasure to welcome you to the another exciting session of Uran for the student by the student. So before we begin, I hope everyone can hear me quickly. Quickly type yes, and screen is visible. If everything is okay, please type yes in the chat box. So this is the itinerary of today's session. This is what you will get in next 60 minutes. Okay. We will begin with the introduction of Nursing Next Live and introduction of our renowned speakers. Then we will have the scientific session on the topic ORS therapy. Then we will have the guidance and counseling from our Margdarshak, and we will hear real topper insights. Okay, then at last we will have a detailed question and answer round along with special reward quiz. So I hope you will stay till the end and enjoy today's session. So this is all about NNL1. Nursing Next Live, now redefined as NNL1, is an affiliate of CBS Publishers and Distributors Private Limited, a pioneer in health sciences publishing known for its visionary approach and impactful contributions to academic excellence. After establishing a robust presence in the publishing industry, CBS ventured into the nursing edtech space with a mission to deliver high quality nursing education accessible anytime, anywhere. Launched in August 2020 as Nursing Next Live, the platform was created to bridge the educational gap between medical and nursing domains. Today, NNL1 has evolved into a comprehensive learning ecosystem catering to the diverse academic needs of nursing students, ranging from undergraduate programs to competitive examinations such as NORCET, NCLEX, and MSc Nursing. All content is aligned with the latest INC syllabus and curated by leading experts in the medical and nursing fields to provide a future ready learning experience. With a steadfast commitment to advancing nursing education, NNL1 has expanded its scope beyond online learning. Having successfully established itself in the online education domain, NNL1 has now ventured into offline education. With its first physical center in Noida, Uttar Pradesh, where several batches have already achieved promising outcomes. In 25, NNL1 is proud to launch its first satellite center, NNL Edu Hub in Jaipur, Rajasthan. And in 2026, we are proud to launch our third academy in Bangalore as NNL Bangalore. Our offline initiative, NNL Academy, offers an enriching blend of classroom learning and interactive sessions led by esteemed educators. Students benefit from state-of-art facilities including CBT labs, simulation-based clinical training, in-person doubt-clearing sessions, certification programs, and personality development modules. So this holistic approach ensures that students gain both academic as well as the practical proficiency. So these are the few reasons why NNL Academy is students' first choice for a reason. We have top educators known as the mastermind faculty. We have exceptional quality content along with comprehensive range of tests from basic to advanced level. We have step-by-step guided study, continuously updated content to stay ahead, engaging learning experience, high success rate of NORCET, and of course it is trusted by our toppers. We also provide comprehensive study material and continuous guidance and counseling. So far, 8,100 plus selections in NORCET, in AIMS NORCET through C+, Plan QB, Fast Track, and NL Academy over the last 5 to 6 years. So this is something exciting. Okay, so today's webinar comes with some amazing reward. Few lucky participants will get the opportunity to win the Masterstroke Volume 3 book. Okay, so for this, you will get a quiz at the end of the webinar. You can scan the QR code. You will get one quiz. If you get all your answers correct and in the minimum time period, you can get to win this award. So I hope you will stay till the end. So without further delay, I'll introduce to the speaker of the day, Ms. Chitra Pandey, ma'am.
She has extensive experience in nursing education and has guided countless students with her expertise. And today's session focuses on a topic that every nursing student encounters in academics as well as and clinical experience. So I welcome you, Chitra ma'am, to today's session. Hi, Nandini ma'am. Very good evening. Thank you so much for Good evening, introducing ma'am. me to all the participants today. Yes, ma'am. And I would like, yeah, am I visible now? Yes, ma'am, you Great, are visible. great. So, first of all, I would like to welcome all the participants here are attending this session today. And this topic of discussion today, which we are going to have in this particular webinar, it is completely focusing on some part of pediatrics and some part of community health nursing. So today we're going to talk about the World ORS Day as we celebrate on 29th July. So my apologies, it should have been on 29th, but we are conducting it today. So we will be discussing a few things, important aspects of ORS, although majority of the participants must be well versed with what exactly ORS is and why do we give this kind of therapy, how is it useful, and for which population is it beneficial, and what all are the constituents and components of ORS. But let's have a quick discussion about ORS therapy. And after that, I will be opening this entire session for the query round. So if you have any queries, any discussions you would like to have, definitely we can do that. And also I will be briefing about one of our upcoming plans, that is UG All-in-One. So I'll be briefing out that plan also, right? So we have Akshay, Deeptimai, Jyoti, Komal, Kulsum, Lakshmi, Rahul, Ritu, and Sakshi, right? So these are the participants. A very warm welcome to all of you to Nocenex Live. Let's begin with the session. I'm just trying to my screen here. Give me a few seconds. I hope the screen is visible to everyone, right? Okay. Ma'am, it is. Great. Great. Okay. Just a second. I'm just also keeping a chat option open with me so that just to address any queries come in between. Thank you, Rahul, Jyoti, and Ritu for your responses. Okay. So today's topic of discussion again, beyond dehydration, mastering the ORS therapy nursing practice. Being a nursing student, if I would say, or a nursing officer, it is our responsibility to prevent dehydration in the patients, be it a pediatric population or an adult population or elderly population. Specifically, I'm from pediatrics, and also the major part of or major chunk of ORS that we use in diarrhea with dehydration. So I will be focusing on more on pediatric population, right? Do let me know if you're comfortable in English or Hindi. We can use both the. तो आज हम बात करेंगे ओआरएस के बारे में, ठीक है? तो ओआरएस कैसे एक बहुत अच्छी थेरेपी बनकर आई, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा सोल्यूशन है, लेकिन बहुत अच्छी थेरेपी है जिससे हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और सम एक्सटेंट हम डिहाइड्रेशन को मैनेज भी कर सकते हैं, है ना? सो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज ओआरएस एंड हाउ आर वी यूजिंग ओआरएस. So if I talk about ORS, or we also call it as ORT, oral rehydration solution or oral rehydration therapy. So ये जो थेरेपी है, ये सोल्यूशन है, WHO यूनिसेफ ने रिकमेंड किया था. ये मिक्सचर है जो ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का बना हुआ होता है, पानी में जिसका एक मिक्सचर बनता है. एंड जो ये आपकी थेरेपी है या सोल्यूशन है, ये फ्लूइड एंड सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी से लूज हो जाते हैं जब भी डायरिया होता है ना? जब लूज स्टूल्स पास होते हैं, डायरिया होता है, डायरियल एपिसोड्स आते हैं, तो हमारी बॉडी से फ्लश ऑफ हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स तो उन और फ्लूइड्स, तो उनको मेंटेन करने के लिए और उनकी रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ओआरएस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म से जो ओआरएस है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वाटर को कैसे अब्सॉर्ब करता है. और डायरियल एपिसोड्स की मैं बात करूं, ओआरएस थेरेपी आपके डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन ये स्टूल के वॉल्यूम को कम नहीं कर सकती. बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बट हम स्टूल के वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट ओआरएस, सबसे पहली चीज कि ओआरएस आया कब. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो ये ओआरएस है इसको कब हम सेलिब्रेट करते हैं. तो दिस वर्ल्ड ओआरएस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जुलाई 29.
So yesterday it was the World ORS Day, which we missed yesterday. Okay. So you must be seeing this particular image. बहुत familiar image है. हमारे घर में भी ORS के पैकेट रखे रहते हैं. I hope सबके घर में रखे रहते होंगे. तो ये ORS बहुत ही कॉमन सोल्यूशन है जो लेमेन भी यूज करते हैं, हेल्थ के प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ. बट बीइंग अ हेल्थ के प्रोवाइडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉपुलेशन को समझाना, बताना कि ORS का जो सैशे है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है. अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो होममेड ORS को भी काफी ज्यादा हम कम्युनिटी में बताते थे, बट नाउ नोबडी इज रेफरिंग और नोबडी इज रेकमेंडिंग होममेड ORS. स्ट्रिक्टली हमें इसी ORS पर फोकस करना है जो WHO और यूनिसेफ रिकमेंडेड ORS है. बहुत सारे ऐसे टेट्रा पैक्स अवेलेबल होते हैं जो इलेक्ट्रॉल या ORS का एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, बट नो, वी नीड टू educate the parents and the population that we have to specifically follow and use WHO recommended ORS solution. Okay, great. So I hope जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, राहुल, ज्योति, ऋतु एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, बस मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ. आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन से ईयर में हैं? आर यू इन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और एनी अदर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और यू पीपल आर ऑलरेडी intern? Great. Thank you, Kulsum. Thank you so much for your response. Third year, Lakshmi, Ritu, second year, Deepti, my third year. Pass out. Great. Intern, fourth year. Very good. Graduated. Great, great, great. So I think अभी तक आपको सबको ORS के बारे में बहुत कुछ पता होगा. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं आपको एक्स्ट्रा देने वाली हूँ यहाँ पे. बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है. ORS के बारे में एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कितना ml किसको देना है, कैसे देना है. हमारा मेन पार्ट आता है जो हमारे पेरेंट्स है, बच्चे का पेरेंट है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कोई अडल्ट है जिसको डायरिया है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाना है, कितना ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और उसके सही इस्तेमाल पर एम्फेसाइज करने की जरूरत है. सो बीइंग हेल्थ के प्रोवाइडर आपको याद तो सब कुछ रखना है, कितने वेट के बच्चे को कितना ORS देना है, प्लान ए क्या होता है, प्लान बी क्या होता है, कब हम ORS का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें आपको बतानी है. बट उसके इस्तेमाल पर काफी ज्यादा एम्फेसाइज करना है ताकि गलत इस्तेमाल हमारे पेरेंट्स या बाकी लिविंग पॉपुलेशन ना करे, पेशेंट्स ना करे, जिससे उनको सही फायदा मिले ORS का. ठीक है. अगर मैं इसको जूम करूँ, कैन यू सी हियर, इफ यू कैन सी द कॉम्पोजिशन, यहाँ पूरा कॉम्पोजिशन मेंशन्ड है. ORS के पैकेट में पूरा लिखा होता है, इट हैज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रोज. एंड अगर आप मिलीमोल पर लीटर के कॉन्सेंट्रेशन में देखो तो हमारे पास में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट सब कुछ है. इसकी ऑस्मोलैरिटी भी यहाँ पर मेंशन्ड है ना. अगर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 245, 245 ऑस्मोलैरिटी है. नाउ यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है. दो प्रकार के ORS बनाए गए थे. सबसे पहले जो ORS आया था वो आया था हाई ऑस्मोलैरिटी, जिसकी ऑस्मोलैरिटी करीबन 311 थी. ठीक है. अब जो हम ORS का इस्तेमाल करते हैं वो लो ऑस्मोलैरिटी ORS है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी है 245 और 245. नाउ व्हाई वी शिफ्टेड फ्रॉम हाई ऑस्मोलैरिटी ORS टू लो. अब जो ये हाई ऑस्मोलैरिटी ORS है ये इस्तेमाल किया गया था कॉलेरा रिलेटेड डायरियल इश्यूज के टाइम पर. ठीक है. लेकिन जो लो ऑस्मोलैरिटी ORS है, जिसकी आप ऑस्मोलैरिटी दे सकते हैं मिली ऑस्मो पर लीटर 245, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, बेहतर है, आपके फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट में हेल्प करता है. ठीक है. इसलिए अब के टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो लो ऑस्मोलैरिटी पे क्वेश्चन आता है, उसी के ऑस्मोलैरिटी पूछी जाती है और उसी ORS के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कंसंट्रेशन पूछा जाता है कि कितना कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछ लिया कि लो ऑस्मोलैरिटी ORS में सोडियम का कंसंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में कितना होता है. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव की बात करें या अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन में वाइवा में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली कम्युनिटी में एंड पीडियाट्रिक्स. तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है आपको ये पूरा याद होना चाहिए, मतलब बाय हार्ट होना चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो और अगर आप यूजी में हैं तो ये चीजें आपको पूरा टेबल ना एग्जैक्टली विद अलोंग विद कॉन्सेंट्रेशन यू नीड टू रिमेंबर. ओके. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लो ऑस्मोलैरिटी ORS. Now let's talk about, we have already discussed that why we are celebrating World ORS Day on 29 July and कैसे ये डायरियल रिलेटेड डेथ्स को प्रिवेंट करता है. अल्टीमेटली जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के रेट को काफी रिड्यूस करता है. ओके. No, so these are the ORS components. Just for your reference, I have mentioned here, although I think सारे बच्चों को यहाँ पता ही होगा. But सबसे ज्यादा important बात जो याद रखने वाली है वो है आपकी osmolarity, which is 245 milli osmo
पर लीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपने एक तो ओआरएस कॉम्पोजिशन सुना होगा जो हम रूटीन पॉपुलेशन में पीडियाट्रिक में यूज कर लेते हैं। एक आपने सुना होगा जो हम रीजोमाल, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर अबाउट रीजोमाल ज्यादा डिटेल में बिकॉज दैट नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन अगर किसी माल न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर या माल नरिश्ड बच्चे के अंदर हमें अगर ऐसे कॉम्पोजिशन को यूज करना है, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का यूज करना है, तो उनके लिए हम रीजोमाल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस अर्लियर, ओके। सो रीजोमाल क्या है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सैम के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में हम रीजोमाल का इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली बाकी पॉपुलेशन में वी फोकस ऑन कंप्लीटली ओआरएस, ओके। ओके, सो नाउ व्हाई लो ऑस्मोलैरिटी ओआरएस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हम ऑस्मोलैरिटी ओआरएस यूज करते हैं तो ये स्टूल के वॉल्यूम आउटपुट का मतलब यहाँ पे है वॉल्यूम को कम नहीं करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपकी फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं कि धीरे 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 डायरियल एपिसोड कम हो जाएंगे, लेकिन ये वॉल्यूम को कम नहीं करता है, ठीक है। यस, इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वॉमिटिंग इन कंपैरिजन टू हायर ऑस्मोलैरिटी फॉर्मूला, ओके। एंड इट ऑल्सो लोअर्स द नीड फॉर अनस्केड्यूल्ड आईवी थेरेपी। अब अगर हम पहले से ही बच्चे को डिहाइड्रेशन में जाने से बचा लेंगे तो क्या हमें उसको आईवी देने की नीड है? क्या हमें उसे इंट्रावेनस थेरेपी या रिंगर लैक्टेट जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन से टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन में ओआरएस यूज करना है और कब यूज करना है कि डिहाइड्रेशन हो ही ना। तो आप सबने डायरिया का नाम सुना होगा, इफ यू रिमेम्बर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डायरिया विद डिहाइड्रेशन, राइट? डायरिया विद डिहाइड्रेशन। सो अगर मैं बात करूं IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू चाइल्डहुड इलनेस के बारे में, तो IMNCI डिहाइड्रेशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करता है। सो अगर हम 2 महीने से 5 साल तक के बच्चों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में आता है वन इज नोन एज नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? जब बच्चे को कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है जिससे हम कह सके कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। डायरिया होगा लेकिन डिहाइड्रेशन अभी हुई नहीं है। एक होता है सम डिहाइड्रेशन और एक होता है सिवियर डिहाइड्रेशन। सो नो डिहाइड्रेशन ग्रीन कैटेगरी में आता है, सम डिहाइड्रेशन येलो कैटेगरी में आता है और सिवियर डिहाइड्रेशन पिंक कैटेगरी में आता है। सो इफ यू रिमेंबर एज पर IMNCI पिंक कैटेगरी का मतलब अर्जेंट रेफरल, बहुत इमरजेंसी है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उसको हायर रेफरल सेंटर में रेफर करना पड़ेगा। तो उन सच केसेस में भी हम ऑन द वे बच्चे को ओआरएस देते हैं। जब तक बच्चा, अगर बच्चा ओरली ले पा रहा है तो हम उसको ऑन द वे ओआरएस देते हैं। एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी जाने के बाद उसके ऊपर हम प्लान सी इंप्लीमेंट करते हैं। प्लान सी इज फॉर द सिवियर डिहाइड्रेशन जिसमें हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं एंड द मोस्ट preferred one is ringer lactate. If ringer lactate is not available, then we go for normal saline, okay? अगर मैं सम डिहाइड्रेशन की बात करूं तो सम डिहाइड्रेशन जो होता है इसका मतलब बच्चे का डिहाइड्रेशन का लेवल में मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस आर देयर जिसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, छोटे बच्चों में अगर मुझे डिहाइड्रेशन चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगी? एब्डोमेन, एब्डोमेन की स्किन को ऐसे पिंच करेंगे और वापस छोड़ेंगे, लूज करेंगे, एंड देन वी सी हाउ क्विकली द स्किन पिंच गोज बैक। If it goes back slowly, we are saying it is some dehydration. If it is going back very slowly, we consider it as severe dehydration, okay? तो इन कैटेगरीज के बेसिस पे हम देखते हैं कौन सा प्लान हमें इंप्लीमेंट करना है और कितना ओआरएस देना है, ओके? सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लान्स के ऊपर, से पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी प्रिपेयर ओआरएस। बहुत बेसिक सी रेमेडी है, प्रिपरेशन है, आई थिंक सबको आती होगी, इतना कुछ बड़ा नहीं है इसमें। सो ये आपको अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने पेरेंट्स मतलब पेशेंट के पेरेंट्स को और पेशेंट को एजुकेट करना है। अगर हमें घर पे ओआरएस बनाना है, कैसे बनाना है? सबसे पहले हैंड्स वॉश करने, डेफिनेटली ये तो हैंड हाइजीन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करने, एक क्लीन यूटेंसिल लेना है, उसमें क्लीन वाटर लेना है। आरओ वाटर हो अच्छा बात है, अगर आरओ नहीं है तो बॉईल करने को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आ सकते हैं एंड देन हम उसमें ओआरएस यूज कर सकते हैं। तो जो ओआरएस का वन सिंगल सैशे रिकमेंडेड है बाय WHO, दैट एंटायर सिंगल सैशे नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देख रहे हैं यहाँ पे 1 लीटर के पानी में पूरा सैशे डिसॉल्व करना है अच्छे से एंड उसको अच्छे से मिक्स करना है। और एज पर द प्लान, बच्चा क्या चल रहा है, प्लान ए में है, प्लान बी में है, कितना वजन है, उसके हिसाब से हम उसको, और एडलिब एज पर द डिमांड ऑफ द बेबी हम ओआरएस प्रोवाइड कराते हैं। एंड उस सोल्यूशन को आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक इस्तेमाल करना है। 24 घंटे के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बच जाता है डिस्कार्ड कर दीजिए, नेक्स्ट डे न्यू ओआरएस का प्रेपरेशन बना के कंज्यूम कीजिए।
So this information you have to give to the audience, the patients, their relatives एंड फैमिली सो दैट वो अच्छे से बच्चे का या किसी भी अपने पेशेंट का ध्यान रख पाए घर पे, अगर हम कंटिन्यूड ओआरएस थेरेपी बोलते हैं तो। ओके, नाउ दिस इज ओआरएस प्लान ए। सो प्लान ए इज फॉर बेसिकली वी फॉलो इट फॉर नो डिहाइड्रेशन। अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं भी है तब भी ओआरएस देना बेहतर रहता है डायरियल एपिसोड में, ताकि फर्दर बच्चे को डिहाइड्रेशन पैदा ही ना हो मतलब हो ही ना, राइट। सो अलॉन्ग विद ओआरएस हम घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स दे सकते हैं, घर में ही बना के दे सकते हैं, ताकि बच्चे को ओआरएस डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी हो ही। तो यहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से एक अमाउंट है जो डिसाइडेड है, रेकमेंडेड है। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, 24 महीने से कम है, तो हम 50 से 100 ml तक का ओआरएस हर लूज स्टूल के बाद दे सकते हैं। अब ये आफ्टर ईच लूज स्टूल घर में मदर के लिए ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बच्चे ने एक बार लूज स्टूल कर लिया तो 50 से 100 ml दे देती हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं कि आपको इस कंडीशन में बच्चे को एक दिन में 500 ml ओआरएस दे दो। अगर 24 महीने से कम का बच्चा है, आप 500 ml ओआरएस दे दो, ठीक है। तो मदर को हम ऐसे बता सकते हैं। अगर बच्चा 2 से 10 साल का है तो हम 100-200 ml ओआरएस दे सकते हैं आफ्टर ईच लूज स्टूल, और 1000 ml पर डे कैन बी गिवन। और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है तो एड लिब का मतलब होता है डिमांड के बेसिस पे, बच्चा जितना मांग रहा है आप दे सकते हो ऑन डिमांड, अप्रोक्सीमेट टू 2000 ml पर डे। सो दिस इज अबाउट प्लान ए। तो प्लान बी में इसके अलावा डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए होम बेस्ड फ्लूइड्स भी आते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल आपने सुना होगा छाछ, है ना, बटर मिल्क के बारे में सुना होगा, और बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम घर में यूज करते हैं, कोकोनट वाटर के बारे में सुना होगा। ये सारी फ्लूइड्स हम घर पे बच्चों को आराम से दे सकते हैं ताकि डिहाइड्रेशन हम प्रिवेंट कर सकें। अगला प्लान है हमारा प्लान बी, विच इज बेसिकली फॉर सम डिहाइड्रेशन। अब बच्चे को सम डिहाइड्रेशन का मतलब डिहाइड्रेशन तो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओआरएस का अमाउंट बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू प्लान ए। तो यहाँ पर बच्चे की वजन और उम्र के हिसाब से आप ओआरएस दे सकते हैं। और अगर मदर को एमएल ना समझ में आए, है ना, आप एजुकेट कर रहे हैं, एमएल नहीं पता, कैसे मेजर करेंगे, कुछ मेजरिंग कप भी नहीं है, तो ग्लास बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्लास ऑफ 200 ml ऐसे करके हम बता सकते हैं, उतना ग्लास हम बच्चे को दे सकते हैं। सो दिस इज अ स्पेसिफिक एज ग्रुप टेबल, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट, ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स में भी अवेलेबल है, एंड हमारी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है इजी। सो बच्चे के वेट के हिसाब से अकॉर्डिंगली वी गिव अमाउंट ऑफ ओआरएस और नंबर ऑफ ग्लासेस वी कैन से, ठीक है। सो एज द एज एंड वेट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड आल्सो विल इंक्रीज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एम आई क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? आई होप आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, दिस इज वेरी मच फेमिलियर टू एवरीवन, जितने बच्चे यहाँ पर हैं। हाँ, सेकेंड ईयर के बच्चों ने शायद ओआरएस नहीं पढ़ा होगा, आई एम नॉट श्योर, पढ़ भी सकते हैं, बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, सो अ बेसिक थिंग वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ओआरएस, राइट। सो दिस वाज अबाउट द प्लान बी। अब इंपॉर्टेंट बात, डूज एंड डोंट्स क्या रखने हैं जब आप मदर को एजुकेट करेंगे, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर और अ नर्सिंग स्टूडेंट, आपको बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले एग्जैक्टली इनको बोलना है कि 1 लीटर के पानी के साफ पानी में ही आपको एक पैकेट घोल कर डालना है, और हर 24 घंटे में उसको फ्रेश सोल्यूशन बना के देना है। जब बच्चे को हम ओआरएस देते हैं तो हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स में देना है, और अगर बच्चा वॉमिटिंग कर देता है तो 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट करना है। अगर वॉमिटिंग कर रहा है तो छोड़ नहीं देना, और वॉमिटिंग कर रहा है तो जबरदस्ती भी नहीं देना। स्लोली ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट, बट आफ्टर 10 minutes वी कैन रिज्यूम प्रोवाइडिंग ओआरएस। अगर बच्चा छोटा है, इन्फेंट है और 2 साल तक का है, हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा हुआ है, तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकती है और नॉर्मल फीडिंग में कंटिन्यू कर सकती है। Apart from that, we give zinc supplementation because in diarrhea, we give zinc supplementation to the babies or the children. So how much zinc do we give? अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है, 6 मंथ से कम है, तो हम 10 mg देते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है, 6 मंथ से ऊपर है, सो वी गिव 20 mg डोसेज पर डे, एंड इट इज गिवन फॉर 14 days। 14 दिन के लिए जिंक सप्लीमेंटेशन दिया जाता है डायरिया में। तो ये मदर को एजुकेट करना है कि जिंक सप्लीमेंटेशन को बंद नहीं करना है, ठीक है, देना ही देना है। सीक मेडिकल केयर प्रॉम्प्टली फॉर साइंस। डेंजर साइंस क्या होते हैं एज पर आईएमएनसीआई? डेंजर साइन क्या होते हैं कि अगर बच्चा लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, फीड नहीं कर पा रहा है, कन्वर्जेंस तो नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी, इरिटेबल है, रेस्टलेस है, ये सारी चीजें डेंजर साइन का पार्ट होता है। आपको मदर को एजुकेट करना है कि अगर इनमें से कोई डेंजर साइन दिखाई दे, जैसे कि सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस दिखाई दे, तो आप अपने बच्चे को वापस हेल्थ केयर फैसिलिटी में लेकर आए फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। सो दीज आर द डूज व्हाट मदर और पेरेंट्स और रिलेटिव्स आर सपोज टू डू। क्या नहीं करना ये भी आपको बताना है।
बेवरेजेस, स्वीटेंड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक देना, लिम्का देना, स्वीटेंड फ्रूट जूसेस देना, completely no, not at all required. So adding sugar or salt into the ORS which you are preparing through one packet, ऑलरेडी उसमें आप शुगर और सॉल्ट डाल रहे हो बच्चे को थोड़ा मीठा देने के लिए, बिल्कुल नहीं करना है। सोल्यूशन को बॉईल नहीं करना है। अगर आप पानी को बॉईल करके फिर सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो गलत। पहले पानी को बॉईल करना है, उसको साफ रखें, नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आए, फिर आप उस एक पैकेट को पानी में डिसॉल्व करें। डोंट यूज सोल्यूशन स्टोर्ड लॉन्गर फॉर 24 आवर्स, डोंट विथहोल्ड फूड टू रेस्ट द गट। सो अगर बच्चा कोई फीड नॉर्मली भी ले रहा है तो हमें कंटिन्यू करनी है, ठीक है। ऑलरेडी जब बच्चे को डिहाइड्रेशन होती है तो इतना ज्यादा सॉलिड फूड ले ही नहीं पाता, तो ज्यादातर सेमी सॉलिड एंड लिक्विड में ही जाता है। बट वट एवर द चाइल्ड इज डिमांडिंग, फूड जो ले रहा है नॉर्मली देते हो वो हम दे सकते हैं, उसको रोकना नहीं है कि भाई पेट को आराम मिलेगा, अभी तो दस्त लगे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Don't dilute or concentrate the packet incorrectly. Don't delay for care of signs of severe dehydration. So severe dehydration में क्या होता है, sunken eyes हो जाती है, बच्चा lethargic हो जाता है, skin pinch very slowly वापस जाता है। तो there are certain signs of severe dehydration which should not be ignored by the parents, and immediately the baby should be referred to the hospital. So these are certain do's and don'ts that we have to remember and need to educate to the family. So this was the last aspect and last part of ORS therapy for today's session, that every drop every drop counts, and this World ORS Day helps spread awareness of correct ORS preparation and its timely use. And definitely it's a very, very simple step that is going to continue to save lives. So prepare fresh ORS, use with 24 hours and save a life. Very, very much important. I hope this much must be clear to all of you till now. बहुत ऐसी हमने कोई चीज नहीं पढ़ी जो हमें पता ना हो या जिसके बारे में हम नहीं जानते हो। Any question, any doubts, if you have, let me know. Then I would like to resume to other part of the session. Yes, we have Ritu, Rahul, Akshata. अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ओआरएस में बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, कितना डोसेज हम दे सकते हैं आफ्टर लूज स्टूल, ईच लूज स्टूल एज पर द एज ग्रुप ऑफ चाइल्ड कितना दे सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और जिंक सप्लीमेंटेशन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, कितना डोज देते हैं एज ग्रुप के हिसाब से। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान रखिए, जिनको प्रिपरेशन के लिए ओआरएस थेरेपी से वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, सब ओआरएस थेरेपी की इम्पोर्टेंस अपनी ऑडियंस को बताना काफी जरूरी होता है, वो हमारे लिए बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। यस, एनीवन, एनी डाउट? अक्षता, सो लेट मी जस्ट से द नेम्स, अगर कोई खुद नहीं बताना चाहता तो हम नाम ले सकते हैं, राइट? सो वी हैव अक्षय, दीपमयी, ज्योति, कोमल, all the participants are here. Yes, please tell me any doubt, any question. If you have, let me know in the comment section. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, Kulsum, no. Great. Thank you so much for your response. Okay. Anyone else would like to ask anything? No? Great. Okay. Thank you, Kulsum. Hi, Deeptimai. You are Samapika. Okay. You're okay. Fine. आप I think same ID से आ रहे हैं. Same ID से आ रहे हैं. Okay. साक्षी का क्वेश्चन है. Let me just see. Taken while giving voice to diabetic hypertensive child in adult. Okay. सी अगर हम बात करें डायबिटिक हाइपरटेंसिव एन अडल्ट चाइल्ड की, जो अगर हम शुगर और ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, अगर डायबिटिक चाइल्ड है उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं। वी हैव टू सी बच्चे को, बच्चा है, बच्चा जो बहुत कम केसेस मिलते हैं हमें, ऐसे अडल्ट भी है, तो पहले देखना पड़ेगा कि उनका किस लेवल का डिहाइड्रेशन है। अगर बहुत ज्यादा लेवल है तो फिर आरएन हमारे लिए बेस्ट रहता है, अदरवाइज ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि हम उसमें ओआरएस नहीं दे सकते। There is no contraindication as such that we should not give ORS. We can give ORS. Meanwhile, that patient is being referred to the hospital or is being taken to the hospital. तो वहां पर जाके we can decide whether we need to continue with the ORS therapy or we can continue with the fluid therapy. So ऐसा कोई contraindication नहीं है, but quite a rare condition that you have asked. Good question. But entirely again it depends on the condition कि हमें कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। Great. Okay. So, okay. Thank you, Sakshi. Great. Now, I would like to specify a few things about our upcoming plan here. We are giving a few things about the plan UG All-in-One. As I told you, we have an upcoming plan that is called as Plan UG All-in-One.
Okay, so under this plan, if you can see in this particular image here, we are talking about a few important aspects. So can you see, I'm just zooming out the screen for all of you. So can you see here the conceptual learning specific aspects are mentioned here: conceptual learning and conceptual practice and conceptual procedure and conceptual revision. So if I talk about this entire plan has specific pillars which are considered and covered under 5 C's. Okay, so these C's basically cover all the aspects of the plan. जब हम बात करते हैं यूजी की, तो यूजी में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस फॉलो करना बहुत जरूरी है। आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से हर चीज हमें मिले, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए बनाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें इतना फोकस करने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर प्लान में ए टू जी, I mean, it's a one-step solution for all the UG students. A to Z aspects you will be getting. चाहे आप अपनी क्लासेस की बात करें जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए एज पर द आईएनसी, जो एक एक वर्ड आईएनसी में लिखा हुआ एज इट इज दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड इन लेक्चर फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर प्लान। अगर मैं बात करूं प्रोसीजर्स की, बहुत सारे बच्चे प्रोसीजर्स के लिए स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर ढूंढते हैं, कहाँ पर बेटर प्रोसीजर हमें मिल जाएगा, कहाँ से हम अच्छा एक प्रोसीजर जान सकते हैं, हर प्रोसीजर में क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। सो ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी बच्चों में रहती है। सो clinical conceptual procedure also we are providing through our this particular plan in video format and for all the clinical subjects. अगर clinical subjects की बात करूं, so we have nursing foundation, adult health nursing, pediatric nursing, midwifery nursing, and then we have मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो इन सारे सब्जेक्ट्स के क्लिनिकल बेस्ड प्रोसीजर्स भी स्पेसिफिक आपको दिखाई देंगे इस प्लान में वीडियो बेस्ड लेक्चर के थ्रू। एंड कंसेप्चुअल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, सो वी ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड विदाउट प्रैक्टिस वी कांट अचीव आवर गोल। तो चाहे आप यूजी एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, दिस एंटायर प्लान इज बीइंग मेड इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म कि आपके सारे जो भी यूनिवर्सिटी लेवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसकी भी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे, उसका भी हम आपको डेटा प्रोवाइड कराएंगे। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या प्रेपरेशन चाहिए, क्या फाउंडेशन चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फोर्थ ईयर, all the aspects practice oriented learning will be covered in this particular plan. And if I talk about conceptual learning, so here we are focusing on providing the स्टडी मटेरियल बेसिकली, सो दैट बच्चा सिर्फ वीडियो लेक्चर्स पर निर्भर ना रहे, उनके पास अपना एक सेपरेट स्टडी मटेरियल भी हो जिसके द्वारा वो पढ़ाई कर सके और अपने एग्जाम्स में एक्सेल कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिविजन। इन दिस पर्टिकुलर रिविजन सेक्शन वी आर फोकसिंग ऑन द एग्जाम बेस्ड रिविजन, चाहे यूजी हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। सो ये जो आपका प्लान है, इस पर्टिकुलर प्लान में हमने फोकस किया है, कोशिश की है एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने की सारे स्टूडेंट्स को, जिसमें ऑल द कंसेप्ट्स आर बीइंग कवर्ड एंड ऑल द पिलर्स आर कवर्ड थ्रू 5 C's। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट द कोर फीचर्स, सो वी आर फोकसिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप हम ये इतना फोकस करें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, या फिर हम यही फोकस करें कि आप यूजी एग्जाम क्वालिफाई कर लो। क्योंकि यूजी एग्जाम के बाद में 4 साल का यूजी ड्यूरेशन खत्म करने के बाद में एक जो एंड हमारे पास में लास्ट स्टॉप आता है, दैट इज the career, what you want to do, whether you want to be a nursing officer in any government institute, you want to go abroad, or you want to be in India, or explore other aspects of nursing profession। तो इस सारी चीजों के लिए एक बेस और फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। That's why we have made and can say invented this particular plan in a manner कि सारे aspect हम इस प्लान कवर कर सकें। सो यहाँ पर डुअल अप्रोच से हम चल रहे हैं, जिसमें हम यूजी एंड कॉम्पिटिटिव दोनों लर्निंग पे फोकस करते हैं। आईएनसी सिलेबस बेस्ड स्मार्ट लर्निंग वी आर कंप्लीटली प्रोवाइडिंग। तो ए टू जी जो आपके टॉपिक्स आईएनसी सिलेबस में मेंशन है, each and every topic video lecture you will be provided with. And we have mastermind faculties, top mastermind faculties who will be conducting these video lectures, which will be in the recorded form. And we're trying our level best to bridge the theoretical gap with the clinical learning through the conceptual clinical procedures in our plan. इसके अलावा आपको इस प्लान के अंदर हाई ये यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, जिसमें पीवाईपीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफी ज्यादा बच्चे फोकस करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर्स मिल जाए, आंसर कैसे लिखना है पता चल जाए। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को भी हम जरूर कवर करेंगे। सिमुलेशन बेस्ड क्लिनिकल प्रोसीजर ट्रेनिंग, एज आई टोल्ड यू, मार्गदर्शन बाय द रैंक होल्डर्स एंड द टॉपर्स। तो हम ऐसे सेशंस भी कंडक्ट करवाएंगे लाइव फॉर द सब्सक्राइबर्स हु विल बी इंटरैक्टिंग विद द एम्स रैंक होल्डर्स एंड टॉपर्स, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके आगे जाके कैसे उनको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, कैसे प्रिपरेशन लेकर जानी है,
ताकि वो आराम से अपने गोल को अचीव कर सकें. एंड इन आर एप्लीकेशन ऑल्सो आप अपने कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स, या फिर आप अभी एवरेज लर्निंग पर हो, कहाँ आपको हेल्प चाहिए. सो आपको गाइडेंस भी मिलेगी, साथ साथ में आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाएंगे. एंड डेफिनेटली दिस इज वन प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गेटिंग ऑल द लेक्चर्स, यू आर गेटिंग नोट्स, यू आर गेटिंग असाइनमेंट्स, all the tests, doubt solving and mentorship support and everything. So if I talk about the lectures, तो lectures को हमने काफी ज्यादा importance दी है, जिसमें हम all the aspects will be covering. सो लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ कोर कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, क्लिनिकली आप उस पेशेंट को कैसे केयर करेंगे, क्लिनिकली उस पर्टिकुलर किस हिसाब से अपने पेशेंट की ध्यान रखेंगे, कौन सी बातों को इंपॉर्टेंस देंगे, ऑल दोज एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड under the lecture videos also. So lecture videos from first till fourth year सारे subjects के available है, and the sequence that we have kept is completely whole solely based on the Indian Nursing Council syllabus. हर बच्चे की यूनिवर्सिटी का अपना syllabus हो सकता है, but nevertheless the topic will remain the same and the subject is going to be the same. So this was about the entire plan UG all in one. So if you want to explore, it is available on free access on our application NNL1. You can explore that plan for till the time it is launched. For free, you can access and explore the videos, explore the content, and just see how you like the content. Okay. So this was about Plan UG All-in-One. I hope some information you people must have got about this particular plan. Thank you, Nandini ma'am, for showing up. I started having cough actually after speaking for consecutively for so many minutes. Thank you so much, Thank ma'am. you for That was intervening. truly an insightful session. Now I'm sure everyone has gained much better knowledge about the ORS therapy and about the UG all-in-one plan also. So if you found today's session good, so please comment thumbs up in the chat box. Let me share my screen. Okay, let me just stop sharing it. Sure, ma'am. Yes, so now we move to the another exciting part of today's webinar. At Nursing Next Live, we strongly believe that students learn best from those who have already achieved what they aspire to. So today we have Miss Rinki Tagar, our Margdarshak, who has got AIR 3 in NORCET 8, and she's graduated from the Ayabai College of Nursing, and she's currently working at AIMS Capfins. So I welcome you, Miss Rinki, and over to you. Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. I hope आपने सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा. एंड ये जो मैम ने ओआरएस टॉपिक अभी डिस्कस किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रीलिम्स एंड मेंस में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे इसके कंपोनेंट हो, चाहे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन. तो आई होप सबने बहुत इंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच चित्रा मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया था. एंड सारे पॉइंट्स जो कि कवर होने चाहिए थे नोसेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे ऑलमोस्ट सारे कवर है. ओके, तो नाउ अभी जो भी स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. Sorry to interrupt. Students, if you have any doubt related to guidance and counseling part or your UG plan, anything like undergraduate में क्या books follow करनी चाहिए, क्या study pattern होता है, कैसे exam में अच्छे marks चाहिए, any and all related to the guidance and counseling part, you have your time now and we have Miss Rinki with us. You can ask questions. ओके. Okay. Jyoti Sharma, how to maintain consistency while preparing for the NOSET. Okay, consistency आपको डेवलप करनी पड़ेगी जब आप यूजी लेवल पर ही हो.
जब आपके पास जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप सेकेंड ईयर में हैं, इस टाइम आपके पास जो जो सब्जेक्ट है आप फोकस करिए उनको, क्योंकि इस टाइम ये सबसे प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि जितना आप थ्योरी पढ़ते हो सेम आपको क्लिनिकल पोस्टिंग में वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, तो आप कोरिलेट बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी टाइम है कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हो। जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस किया था यूजी वन इन प्लान, इसकी आप हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपना थ्योरी पोर्शन कवर कर सकते हो, एंड सेम चीज जब आप क्लिनिकल में जाओगे तो वहां पर आप उस चीज को देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कंसिस्टेंसी यहीं से, यूजी में आप कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स रोज स्टडी करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप का कॉलेज स्टार्ट होता है, सुबह क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, देन उसके बाद कॉलेज में क्लासेस होती है, आप 4 या 4:30 या 5 o'clock तक फ्री हो जाते हैं। देन आप 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद आप 2 आवर्स 6 to 8 कर सकते हैं, या 1 आवर डिनर से पहले एंड 1 आवर डिनर के बाद। आप रोज 2 2 आवर्स भी पढ़ेंगे, आई थिंक यूजी में अगर आप 2 या 3 आवर्स रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं उतना इनफ होता है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2 years 3 years। तो ऐसे करके आप मेंटेन कर सकते हैं। आप बड़ा टारगेट मत रखिए कि आपको रोज 6 to 8 आवर्स, क्योंकि यूजी में आई नो आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, आपको अपने यूजी में जो जो सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स हैं मेन सब्जेक्ट्स के अलावा उनको भी कवर करना है। Ma'am, I am also from the Ritu Sharma. Okay, ABCON. Okay, Ahilya Bai College of Nursing. ओके मैम, माय क्वेश्चन इज मीन सेकंड सैम में बैच लिया था बट मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा बचा हुआ है। अब मैं सेकंड ईयर में हूँ तो मुझे अभी बैच लूँ या पहले सिलेबस जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करूँ? ओके, आपका क्वेश्चन क्या है कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आपने बैच लिया था पहले, बट मेरा अभी सिलेबस, कौन सा सिलेबस आपने पहले बैच लिया था? प्लीज रितु एक बार आप फर्स्ट ईयर का, ओके आपने फर्स्ट ईयर का बैच लिया था, वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, अभी आप सेकेंड ईयर में हो गए हो। तो आप एक काम, ओके, अभी आप एक काम कर सकते हो, अभी आप सेकेंड ईयर का स्टार्ट कर सकते हो। समर्स ब्रेक हमें मिलते हैं अभी, लास्ट में ही आपके समर्स ब्रेक कंप्लीट हुए होंगे, समर्स ब्रेक 2 months के आपको मिलता है। अभी जो फर्स्ट ईयर का है आप उसको यहीं पर छोड़ दो, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो। और जब आपके समर्स ब्रेक होंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, फिर जब आपके समर ब्रेक आएंगे उस टाइम पे आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो आपने छोड़ा था, लेफ्ट था, वो कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी सेकेंड ईयर के लिए आप यूजी प्लान ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मिस्टेक शुड बिगनर्स अवॉइड। ओके, मिस्टेक बिगनर्स को क्या अवॉइड करनी चाहिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने थ्योरी पोर्शन पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। जितनी चीजें आप क्लिनिकल में देख रहे हो उन सबको आप अप्लाई कर सकते हो। तो मोर फोकस करिए कि आप अपनी थ्योरी को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अभी आप यूजी में हो ऑलमोस्ट, और अभी आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आपको नोरसेट में, क्योंकि नोरसेट ईयर में 2 times हो रहा है, तो हर स्टूडेंट के ऊपर बर्डन होता है कि उसको सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करना है बहुत शॉर्ट टाइम में, बट आपके पास ऐसा नहीं है। तो आप रोज अगर 2 to 3 आवर्स रोज स्टडी कर रहे हो तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई थिंक एक तो कंसिस्टेंसी, और दूसरा आपको बाकी लोगों से जल्दी स्टार्ट करना है ताकि आप इस रेस में बाकी लोगों से बहुत आगे हो। हाउ डिड यू मेंटेन टू प्रिपेयर फॉर नोरसेट एंड अचीव सच अ गुड रैंक? ओके, प्रिपेयर आप यूजी से ही करना स्टार्ट करो, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने भी यूजी से ही स्टार्ट किया था। थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। और कोशिश करो सब्जेक्ट आपके अभी रिसेंट में चल रहे हैं उनको आप पहले कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। फर्स्टली आप यूजी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हर कॉलेज में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, आपको वाइवा में बहुत हेल्प होगा। सेकंड चीज कि आप नोसेट के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे। और थर्ड कि आप ना कोरिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। कोरिलेशन बहुत जरूरी है चीजों का। जो चीज आज आपने पढ़ी
और सेम चीज आप क्लिनिकल पोस्टिंग में देख रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट किसी स्टूडेंट के डाउट? I guess doubts are cleared now. ओके, Students, you can take 1 more minute if any of you have any doubt, so you can ask. If not, then we will move further. Okay, as I can see, there are no more doubts. So thank you so much, Miss Rinki, for थैंक यू your सो मच guidance मैम। and counseling. Yes, I मैम see one के question. मैम यूजी को कंटिन्यू करते हुए कौन से कॉम्पिटिटिव बुक फॉलो कर रहे हैं? बुक है यूजी के साथ साथ आप जिसको फॉलो कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस हैं। आपको बेसिक से स्टार्ट होगा, उसमें आपको वन लाइनर भी मिलेगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। एंड आई थिंक जितना भी स्टूडेंट्स की चॉइस होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसकी टारगेट हाई बुक चॉइस होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें सिर्फ एक एग्जाम को कवर नहीं किया है, हर एग्जाम को कवर किया है। तो टारगेट हाई बुक। Okay, thank you so much, Miss Rinki. That was ओके, such an amazing session. Thank you so much. थैंक थैंक यू सो मच मैम। Okay, so moving further, we also have our UG topper, Mr. Balbir. Okay, he is BSc nursing student currently in the 7th semester from Government College of Nursing, Churu, Rajasthan. So let us hear from him कि आज आप जहाँ पे हो, he is also one of the student and he has got second rank in PSC nursing, which is amazing. So let's hear उन्होंने कैसे ये रैंक अचीव करी है और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है. So over to you, Mr. Balbir. Okay, good evening, ma'am. First of all, thank you so much, everyone, for giving this opportunity. Good evening. You are welcome to the webinar. Okay. So, myself, Balveer Jangid from Government College of Nursing, Churu, currently in 7th semester. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने 6 सेमेस्टर में सेकेंड रैंक अचीव की थी, जो कि किस तरीके से की थी, मतलब मैंने पढ़ाई को किस तरीके से, और जब मैंने एनएनएल का प्लान यूजी नो से ज्वाइन करा था, उससे पहले मेरी पढ़ाई कैसी चल रही थी, उसके बाद में मेरी पढ़ाई कैसी है, क्या क्या चेंजेस आए, मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगा कि एनएनएल से पहले मेरी जर्नी किस तरीके से थी। जैसा कि सभी स्टूडेंट, जैसे मैं नया नया जब बीएससी नर्सिंग में ज्वाइन करा था, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अपनी जो बुक्स है उसको, लैंग्वेज को पढ़ते जाओ और थ्योरी एग्जाम अटेम्प्ट करो और सेमेस्टर क्लियर करो। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये थिंकिंग होती है कि सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है। उस समय ये मतलब थिंकिंग नहीं होती कि अपने कंसेप्ट को बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अपने जो सेमेस्टर एग्जाम है वो बैक नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से चलते चलते मैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आ गया। ठीक है, फिर मेरे को धीरे धीरे कुछ सीनियर से मतलब बातचीत की, कुछ मेरे टीचर्स हैं उनसे बातचीत की, तो ऐसा पता चला कि सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करना ही बहुत कुछ नहीं है। मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कंसेप्ट जो अपने हैं वो बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरा फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तब मैंने क्या करा, एनएनएल वन को ज्वाइन करा था। मतलब सितंबर लास्ट ईयर मैंने एनएनएल वन प्लान ज्वाइन करा था। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, अप्रोक्स 20 to 25 डेज थे, और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम भी आ गए थे। तो उस समय तो मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया, पर मैंने ये थोड़ा असेस किया कि मतलब स्ट्रक्चर्ड जो लेक्चर्स होते हैं वो मतलब देखा, उनका स्ट्रक्चर देखा एनएनएल का,
ठीक है, कुछ लेक्चर्स अटेंड किए, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद, आफ्टर मतलब एनएलएल ज्वाइन के बाद, मतलब मैंने देखा कि सिक्स सेमेस्टर का स्टार्टिंग मैंने ये सोचा कि अब शुरू से स्टार्टिंग से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब हर एक लेक्चर को अटेंड करना चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसके एमसीक्यू अटेंड करने चाहिए। तो जैसे ही मेरा सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने जैसे ही सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने धीरे धीरे मतलब लेक्चर्स अटेंड करना शुरू हो गया। जस्ट लाइक जैसे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के आनंद भाटिया सर और चित्रा मैम लेक्चर्स के अटेंड करना, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंकित गोयल सर से लेक्चर्स अटेंड करना। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे लेक्चर्स अटेंड करना शुरू करा। और फिर मेरे को ये भी था कि लेक्चर्स अटेंड करना ही सब कुछ नहीं है, मतलब उसको समझना, उसको उसी दिन रिवाइज करना, उसके जिस तरीके से जैसे एनएनएल के में नए नए फीचर्स आने लगे, लाइक हर लेक्चर्स के नीचे सीबी वेट नाम से एक एमसीक्यू का ऑप्शन होता है, उसी लेक्चर्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होता है उसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने का मौका मिलता है। ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा बिल्ड हो जाते हैं। साथ में आपको एक क्यू बैंक का ऑप्शन मिलता है, उसमें भी उसी टॉपिक के रिलेटेड जो नोट सेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनमें जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस टॉपिक से, वो उसमें रहते हैं। तो मैंने वो सारे भी अटेम्प्ट करना धीरे धीरे शुरू करा। और मेरा जो मेनली गोल था ना, वो ये था कि मतलब जिस लेक्चर को मैं जिस दिन ज्वाइन मतलब अटेंड करूं, उसी लेक्चर का उसी दिन मैं सीबीवेट भी दूं और क्यू बैंक भी दूं, ताकि मेरा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है। और मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट के साथ कि जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है कॉलेज की। ठीक है, फिर वहाँ पर असाइनमेंट भी अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये ज़्यादा मोस्टली प्रॉब्लम होता है। तो इससे मैंने इन चीज़ों से कैसे मैंने मैनेज किया, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मोस्टली मैं क्या करता था। जैसे कॉलेज में मेरा टाइम रहता था मतलब 2 बजे से, मतलब सॉरी 8 सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, जैसे ही मैं आता था मतलब अपने हॉस्टल में, तो मोस्टली मैं 1-2 घंटे रेस्ट करता था, फिर लेक्चर्स अटेंड करता था। ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करता था, फिर उसको रिवाइज करना, फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जो कॉलेज के असाइनमेंट और जो प्रैक्टिकल वगैरह है उसको मैंने इस तरीके से, जैसे जिस दिन मेरा ऐसा लगता था कि आज मतलब कम मोटिवेटेड, या फिर मैं जब वेकेशन पे जाता था, घर पर जाता था, तब मैं अपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल में मैं ज़्यादा मतलब उनको उसमें बना लेता था, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि वैसे भी हम घर पर जाते हैं ना, तो मुझे पढ़ाई 4-5 दिन के लिए हो नहीं पाती, क्योंकि घर के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। तो उस समय मैं बैठे बैठे अपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लेता था। देन मैंने लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए, और काफी कुछ मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गए, जैसे कि मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, बेसिक जो भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो गए। एनएलएल का एक और फीचर ऐसा बढ़िया लगा कि जो भी लेक्चर्स है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, और जो क्वालिटी लेक्चर्स है ना, उससे काफी कुछ सीखने को मिला है। मतलब जैसे कि पहले मैं क्या करता था, एनएलएल ज्वाइन करने से पहले यूट्यूब पर रैंडमली लेक्चर्स देखता था, उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे। कभी एक ये लेक्चर सर्च करना पड़ता था, कभी ये, और ये भी नहीं था कि सेम टीचर्स के मुझे लेक्चर्स मिल जाते, कभी कोई और लेक्चर्स के, इसलिए पहले मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता था। ठीक है, जैसे ही मतलब सिक्स सेम में एनएलएल से कंप्लीट साथ साथ पढ़ाई करने लग गया, तो सिक्स सेमेस्टर में मुझे फाइनली इसका सेकेंड रैंक अचीव किया सिक्स सेमेस्टर में। और अभी फिलहाल मैं सेवन सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एज यू नो मुकमोई सर कवर करवा रहे हैं, और ओबीजी नर्सिंग साक्षी मैम करवा रहे हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ ओबीजी नर्सिंग। तो वहाँ से कवर कर रहा हूँ, और साथ साथ अपने असाइनमेंट और फाइल, जो मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन मेरा मतलब लेस मोटिवेटेड डे रहता था, उस दिन मैं कवर करता था। और मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये भी पूछते हैं कि मैंने मतलब कितने घंटे पढ़ना जरूरी होता है। तो ऐसे सोचो कि मतलब कितने घंटा पढ़ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है। मैं ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि एक दिन में पढ़ना है, आपको 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, बट मैंने ये सोचा कि जितने जितने स्मॉल स्टेप हम आगे रखेंगे, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। कभी मेरा किसी दिन में 1 घंटा भी हो, लेकिन मुझे अटेंड करना जरूरी है कि उस चीज को मैं पढूं। कभी मेरा जब कॉलेज टाइम में ये नहीं होना चाहिए कि जब मैं कॉलेज से घर पर आऊँ तो ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, आज मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया चलेगा, लेकिन अगर
साथ में कुछ ना कुछ जैसे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करो, तो वो भी कुछ ना कुछ यूजफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरा दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप रखते जाओगे तो एक ना एक दिन आपका जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच। यहाँ तक की जर्नी थी और आगे भी मुझे लगता है 7th सेमेस्टर में इससे भी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। और एक एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं, बस ये है कि आप कंसिस्टेंटली मेंटेन रखो और बाकी रिजल्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Balveer. That was truly inspiring. Okay, this has already been explained. Okay, so now the favorite part of all the students, question and answer round. You still have time, students. If you have any questions, you can drop in the chat box. We have with Rinki with us and Mr. Balveer also related to guidance and counseling. If you have any questions, you can ask in the chat box. Okay. So by the time you are asking questions, I'll open the QR code for quiz. Yes, so this is the special reward QR code for the quiz. If you scan this QR code, you will get a 5-question quiz. Okay, if you get all the answers right, all the 5 answers right, and the fastest finger, the most important thing, if you get all the answers correct in the minimum time period, you can win the Masterstroke Volume 3 book as mentioned in the starting of the webinar. Okay, so only a few lucky winners will get Masterstroke Volume 3 book. So scan the QR code or you can take the picture of this. If you want to attempt it later, you can take a picture or you can scan it now. You have time. Okay. Till then, if you have any questions, any query related to NNL plans, related to guidance and counseling, scientific session, the Udan webinars, or anything if you have in your mind, you can drop in the chat box. We are here to help you out. Okay, as I can see, there are no specific doubts from the students. So, as we come to today's end of the session, I would like to sincerely thank our respected faculty, our Margdarshak, and every student who has joined us today. So your participation made Udan webinar truly, truly special. So before leaving, please do not forget to scan the QR code and attempt the quiz. Remember, your e-certificates will be shared only after a successful submission of the feedback form that will be shared with you tomorrow. Okay, so do not forget to share your feedback as well as participate in the quiz. Okay, so thank you everyone for joining Udan for the student, by the student. Keep learning, keep growing, and keep believing in yourself. We will see you in the next Udan webinar. Have a wonderful evening and take care. Thank you so much.